نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سورۃ الفرقان، مومن کی پہچان۔ اب تک میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو مومن کی پہچان بتلائی ہیں وہ سورۃ الفرقان سے 12 یا 13 ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد میں ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ مکمل مومن ہونے کی وجہ سے ان کو کیا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے اونچے اونچے محل ہیں، یعنی جنت۔ جنت کے اندر عزیز دوستو اونچے اونچے محل ہیں اور بڑے بڑے درخت ہیں، یہاں تک کہ احادیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ایک درخت کی چھاؤں میں آدمی دوڑنا شروع کر دے اور دوڑتا رہے تو ایک ہی درخت کی چھاؤں میں دنیا کے اعتبار سے، جو دنیا کے ہمارے سال سن چلتے ہیں، تقریباً 500 سال کی مسافت تک گھوڑا دوڑائے تب اس کی کہیں جا کر کے اس کی مسافت پوری ہوگی، یا حدیث کے الفاظ ہیں شاید کہ اس وقت بھی اس کو پورا نہ کر سکے۔ اس لیے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت جو ہے رہنے کے لیے بہترین جگہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جن چیزوں سے انسان نے اس دنیا کے اندر پرہیز کیا تھا، جن کی وجہ سے پرہیز کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ تمام چیزیں انسانوں کو وہاں میسر ہوں گی۔ مثلا شہد کی نہریں، شہد تو دنیا میں بھی حلال اور سنت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ پینے کا عہد کر لیا تھا، قسم کھا لی تھی یا عہد کر لیا تھا، اور وہ بھی بیویوں کے کہنے کی وجہ سے کہ ہم کو آپ کے منہ سے شہد کی بو آتی ہے، تو آپ نے شہد نہ کھانے کا عہد کر لیا تھا، اور اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل کو بھیجا قرآن لے کر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہم نے حلال کی ہے تمہارے لیے، تم کو کیا حق ہے اس کو کہ تم اس کو حرام قرار دو۔ عزیز دوستو واضح رہے، جن چیزوں کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے وہ ہمیشہ حلال رہیں گی۔ کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی ولی، کوئی فقیر اور کوئی عالم کی کوئی طاقت نہیں کہ جو اس کو کوئی حرام قرار دے دے۔ کیوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں، اور بزرگ اور یہ جو جتنے عالم اور مولوی ہیں یہ تو شیء کوئی چیز نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً آپ کو حکم دیا کہ تم کون ہوتے ہو جو اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دو، کیونکہ میں نے شہد تمہارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ تو عزیز دوستو جن چیزوں سے اس دنیا کے اندر آدمی پرہیز کر کے جاتا ہے وہ چیزیں وہاں دنیا کے اندر ملتی ہیں۔ مثلا شراب سے اس نے پرہیز کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو شراب کی نہریں عطا فرمائے گا، دودھ کی بھی نہریں ہوں گی، شہد کی بھی نہریں ہوں گی، اور ایک ایک آدمی کو جو کم سے کم درجے کا ایمان والا ہے، جس کو سب سے کم جنت ملے گی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ دنیا سے، یہ جو دنیا ہے یہ اس دنیا سے کم 10 گنی بڑی جنت ملے گی، جبکہ اس دنیا کا جو چکر ہے وہ تقریباً 40 سے 50 ہزار کلومیٹر کا بیٹھتا ہے۔ اس لیے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت
सबसे बेहतरीन चीज़ है ठहरने के लिए। और इससे पहले अल्लाह तबारक तआला ने हमको बतलाया था कि जहन्नम बहुत बुरी चीज़ है, जहां मैंने आपको बताया था कि वो लोग, उन लोगों की एक सिफ्त यह है कि वो जहन्नम से पनाह मांगते रहते हैं, क्योंकि जहन्नम ज़बरदस्त बुरी चीज़ है ठहरने के लिए। लेकिन जो लोग बुराइयों में मुलविश हैं, जो लोग बुराइयों में लगे हुए हैं, उनके लिए वो जहन्नम का ठिकाना है। और जो लोग भलाइयों में लगे हुए हैं, नेक काम करते हैं, सब्र करते हैं, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोशिश करते हैं, और ज़मीन पर अकड़ करके भी नहीं चलते, और जाहिलों से ज़्यादा मुंह बकवास भी नहीं करते, और अपने लिए और अपने अहलो अयाल के लिए भी जन्नत की तलब करते रहते हैं, और उससे बचने की कोशिश भी करते रहते हैं। इन तमाम सिफात वालों के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऊंचे ऊंचे महल होंगे, जन्नत के महलात दुनिया के महलात से कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा बेहतरीन होंगे। अज़ीज़ दोस्तों, वो ऐसी नेमतें हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो ऐसी नेमतें हैं कि तुम्हारे दिलो दिमाग पर कभी गुमान भी ना आया होगा, और तुम ये सोचोगे इतना बड़ा इनाम इतनी छोटी सी ज़िंदगी के अंदर अपने आप को सब्र के सांचे में ढालकर, इतना बड़ा इनाम कि आदमी मोमिन हो, अल्लाह पर ईमान रखे, रसूल पर ईमान रखे, और उसकी पाबंदी करे कुरान करीम की, और कलमे के तमाम तकाज़ों को पूरा करे, उसका इतना बड़ा इनाम, आदमी हक्का बक्का रह जाएगा। अजीज़ दोस्तों, इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत उस तरीक़े पर करें जिस तरीक़े पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बतलाई है। और फिर इससे आखिरी आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर तुम ऐसा ना करो, यानी अल्लाह को ना पुकारो, अगर तुम ऐसा ना करो, जहन्नम से पनाह ना मांगो, अगर तुम ऐसा ना करो, यानी झूठी गवाही भी दो, इसी तरह तमाम सिफात को समझ लीजिए जो मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपके सामने डाल दी हैं। इंशाअल्लाह सारी की सारी जो फहरिस्त है इसकी मैं कल की वीडियो में आपके सामने डाल दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अजीज़ दोस्तों, जो ये सारे काम ना करे, उसके लिए अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि मुझे भी उनकी परवाह नहीं। अपने नबी से कहलवाया, ए नबी इनसे कह दो अगर वो अल्लाह को ना पुकारें तो अल्लाह को भी उनकी कोई परवाह नहीं, और उनके झूठ बोलने के सबब उनको यकीनन ज़रूर बिल ज़रूर उनको उसकी जो है सज़ा मिल जाएगी। इसलिए अजीज़ दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहें, और उससे जहन्नम से पनाह, उसकी जो है जहन्नम से पनाह मांगते रहें, और उसकी पनाह को तलाश करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का सलाम नहीं फेरते थे उस वक्त तक जब तक जहन्नम से पनाह ना मांग लेते, जब तक अज़ाब क़ब्र से पनाह ना मांग लेते, जब तक दज्जाल के फितने से पनाह ना मांग लेते, जब तक ज़िंदगी और मौत के फितने से पनाह ना मांग लेते, जब तक गुनाहों से बचने की तौफीक ना मांग लेते, और जब तक कर्ज से निजात या कर्ज की नहुसत से बचने के लिए अल्लाह से दुआएं ना मांग लेते थे। ये तकरीबन 6 या 7 चीज़ें हैं, एक ही दुआ के अंदर हैं। आप फरमाते हैं सहाबाए किराम ने जो है देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक इन 6 चीज़ों से या 7 चीज़ों से पनाह नहीं मांग लेते, सलाम नहीं फेरते। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कर्ज से इतना डरते हैं कि आप उस वक्त तक सलाम ही नहीं फेरते। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनल मासमी, गुनाहों से भी डरते हैं, व मिनल मगरमी, यानी कर्ज से भी डरते हैं। ये क्या बात है? आपने फरमाया आयशा, जब आदमी कर्जदार हो जाता है तो उसके अंदर 2 मुनाफिकतें घुस जाती हैं। नंबर 1, वो झूठ बोलता है, झूठे वादे करता है। नंबर 2, यानी कि वो दो करता है, यानी वो झूठ भी बोलता है और जो वादा करता है वो पूरा नहीं कर पाता। इसलिए अजीज़ दोस्तों, कर्ज से बचें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकरूज़ की जनाजे की नमाज उस वक्त तक नहीं पढ़ाते थे जब तक वो
उसको माफ़ ना कर दे या जब तक कोई उसके कर्ज की जिम्मेदारी ना ले ले, और जब आप पर वसअत आ गई तो आप फरमाया करते थे कि जो मर गया उसका माल उसके वारिसों को दिया जाए, और जो इस पर कर्ज है वो मैं दूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझको इन पर जो है सबसे बड़ा कफील बनाया है। बल्कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये तुम्हारे रूहानी बाप हैं और इनकी बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। इसलिए अजीज़ दोस्तों, अल्लाह के नबी फरमाते थे कि इनका मुझ पर ज़्यादा हक़ है, इसलिए इनका कर्ज मैं दूंगा। और उसके बाद में आप जनाजे की नमाज़ पढ़ाया करते थे। जनाजे की नमाज़ मेरी नज़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 आदमियों की नहीं पढ़ाई, एक मकरूज़ की, एक खुदकशी करने वाले की, और तीसरे उस औरत की जिसका शौहर उससे नाराज़ हो। या तो वो माफ़ कर दे या फिर आप जनाजे की नमाज ही नहीं पढ़ाते थे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको जहन्नम से पनाह दे, और अल्लाह तबारक ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक ताला हमको जो है जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। इसी में हमारी खैर है। अल्लाह की कसम, जन्नत के अंदर जो इंसान को सबसे बड़ी चीज़ मिलेगी, इन तमाम महलात के मुकाबले में, तमाम नहरों के मुकाबले में, तमाम दरख्तों के मुकाबले में, तमाम बागात के मुकाबले में, तमाम खुशबुओं के मुकाबले में, इन तमाम चीज़ों के मुकाबले में जो सबसे बड़ी नेमत होगी वो क्या होगी? वो होगी अल्लाह की खुशनुदी। और फरिश्ते उनसे जब मुलाकात करेंगे तो सलामती की दुआ करते हुए मिलेंगे। अजीज़ दोस्तों, इसलिए सबसे बड़ी जो खुशनुदी होगी और सबसे बड़ी जो नेमत जन्नत के अंदर हमको मिलेगी वो अल्लाह तबारक व तआला का दीदार, अल्लाह तबारक तआला की रज़ा, अल्लाह तबारक तआला की खुशनुदी होगी। और जहन्नम के अंदर जो सबसे बड़ा अज़ाब होगा वो भी यही होगा कि अल्लाह तबारक तआला की नाराज़गी, उसका गुस्सा और उसका कहर होगा। इसलिए उससे बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ का हम सबको कुरान करीम ही के अंदर हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ अनफुसकुम अहलिकुम नारा। ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, ए ईमान रखने वालों, ए वो लोगों जो अल्लाह पर ईमान रखते हो, ए वो लोगों जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हो, फरमाया अपने आप को बचाओ और अपने अहलो अयाल को बचाओ जहन्नम की आग से। इसलिए अजीज़ दोस्तों, अपने अहलो अयाल को बचाने का मतलब ये है कि उन पर ज़बरदस्ती से भी रोक लगाओ कि वो गुनाह ना करें अगर तुम्हारे अंदर कुदरत है तो, और दूसरे लोगों को भी बचाने की कोशिश करो, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और हम भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। उनको भी जहन्नम से बचाने की कोशिश करते रहो, मगर नरमी के साथ, क्योंकि दीन के अंदर ज़बरदस्ती भी नहीं, ला इकराह फिद्दीन, कि अगर कोई ना चाहे तो उस पर कोई गिरफ्त नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं। हाँ, दुनिया में ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर किसी ने अल्लाह पर ईमान से इनकार किया, रसूल पर ईमान से इनकार किया, कुरान पर ईमान से इनकार किया, अहदीस सहीहा पर ईमान से इनकार किया, तो क़यामत के रोज़ आखिरत, यानी दुनिया से गुजरने के बाद जब अगली ज़िंदगी शुरू होगी, जब हकीकी ज़िंदगी शुरू होगी, अल्लाह तबारक तआला उससे अपने आप निमट लेगा। इसलिए अजीज़ दोस्तों, ईमान की 3 अलामतें हैं। अपनी ताकत से रोके, अपनी ज़बान से रोके, और अगर ये भी ना हो सके तो अपने कम से कम दिल में तो बुरा कहे। लेकिन अगर कोई दिल में भी बुरा नहीं कहता बल्कि उसमें शरीक हो रहा है, और वो कह भी रहा हो अगरचे गुनाह है, लेकिन वो शरीक ज़रूर फिर भी हो रहा है, तो वो भी उसी गुनाह में शामिल है और उसको भी बराबर गुनाह होगा। इसलिए अजीज़ दोस्तों, हमको गुनाहों की मजलिसों से भी बचना चाहिए। इसीलिए इन अलामतों में एक अलामत ये भी बयान की गई थी कि जब कहीं बुराई का काम हो रहा हो तो वो लोग बुजुर्गाना अंदाज से अपनी नज़रों को नीची करते हुए, अपनी निगाहों को बचाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन मुख्तसर सी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
اور اگر کوئی جذبات میں غلط بات میری زبان سے نکل گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی ہمارے دلوں سے معاف کر دے، نکال دے، اور جو صحیح بات، حق بات نکلی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس کو راسخ فرمائے، اس پر عمل کرنا بھی آسان فرمائے، اس پر عمل کرنے کے موقع بھی عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تبارک و تعالی وبرکاتہ۔